書庫というのは5本をたくさん置いておくお部屋のことです。In today's video, we are going to talk about what was my first book and how I got into reading, how it eventually benefited me, not just with my imagination, but also with my general development, general knowledge, and my speaking skills as well. When we talk about reading, it's not just about reading a book, reading a story, it is more than that. Alright, so everything will be covered in detail, so stay tuned. In case you want to know what this cute little anime was, so it was School Babysitter. You can definitely check that out as well. So Champak. Champak was my first book. In case you don't know what Champak is, actually it is quite famous. I don't think that anybody of you don't know about it. So Champak is this comic book, and let me tell you, when I was in class 2nd, 3rd, 4th, the period between this, so then we used to go to a maternal uncle and to his place, Nani ke ghar. So then me and my cousin, we used to read this Champak. Champak में क्या होता है ना, बहुत सारी short stories होती हैं, puzzles होते हैं, बहुत सारे other entertaining चीज़ें होती हैं, not just stories. तो it is actually in Hindi, but चलो हिंदी तो पहले शुरुआत है ना. So that is how I got into reading. मैं consider नहीं करूँगी इसे reading, but हाँ stories में interest मुझे तब से आया था. And second thing, जब हम लोग दो आदमी एक पेज को रीड कर रहे होते हैं ना, तो वेरी चैलेंजिंग थिंग इज़ कि आपको उसकी स्पीड से मैचअप करना होता है. सो दैट इज़ हाउ आई स्पीडेड अप अ लिटिल. आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू बी फेमिलियर विद चंपक, एंड लेट मी नो यार, अगर तुम लोगों को पता है कि व्हाट चंपक वॉज, तो कमेंट डाउन कि हाँ हम उस ज़माने से हैं जब चंपक पढ़ी जाती थी. सो आई डोंट नो यार इफ़ इट इज़ स्टिल अवेलेबल और नॉट, क्योंकि अब तो सारे स्टैनली वाले हो गए. So let me tell you a bit about myself. I was an arrogant, egoistic, frustrated kind of a child. Since, let me tell you, okay, I was a defense aspirant since I was in class 6th. I was very much motivated by my grandfather. My grandfather was in army and he used to tell us stories about the war, okay. So that is how I am inclined a little bit more towards army. And see, I've been grown up listening to all these stories about the forces, about the struggle and everything. Okay? So that is how it motivated me. But at that point of time, I didn't know about the exams, that if you want to be an army officer or an Air Force Navy officer, so you have to clear an exam. At that point of time, I was completely clueless. So everything that I knew was कि आपको physically बहुत strong होना है, and then I started basketball. So I was so much into basketball. I am a basketball player as well, in case you don't know. ये पार्ट ना मेरी स्टोरी का बहुत एक्साइटिंग पार्ट है, क्योंकि ये वाली श्रेया जो है ना, दैट वाज बंक वाली श्रेया. अब हुआ क्या था कि आई स्टार्टेड रीडिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 8th. इससे पहले मैंने कोई वेल नोन ऑथर, ऐसे बहुत सारी नोवेल्स तो पढ़ी हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक नोवेल पकड़ लिए किसी वेल नोन ऑथर की, ये पहली बार हुआ था मेरे साथ. दैट टू इन स्कूल लाइब्रेरी. आई एम एन अल्मा मैटर ऑफ APS, in case आर्मी स्कूल you're watching me. Hi. So let me tell you this exciting, very exciting part of my life. I started playing when I was in class 6th. मैंने 6th class से basketball खेलना शुरू कर दिया था. And right now I am a 3rd year bachelor student. So अभी तक ख़त्म हो जाना चाहिए, but thanks to Corona and our Uttarakhand University that we are still yet to complete our 6th semester. तो that was it. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 3 साल से मैं लगातार, मैंने एक बार भी लाइब्रेरी का पीरियड अटेंड नहीं किया था. मैंने देखा भी नहीं था लाइब्रेरी किस साइड है. सो हुआ क्या था कि 8th में व्हेन देयर वाज दिस, कोई भी मतलब ऐसी रैंडम डे पे बारिश हो गई, एंड इट वाज अ लाइब्रेरी पीरियड एंड नेवर यूज्ड टू अटेंड लाइब्रेरी की जगह मैं गेम्स खेलने चली जाती थी. सो दैट डे बारिश हो गई और हमारा कोट भीग गया था, तो खेलने को नहीं मिला. सो दैट डे व्हाट आई डिड वाज कि मैं लाइब्रेरी गई और मैंने ऐसी रैंडमली एक बुक उठा ली, एंड द बुक वाज चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. देन आई गॉट टू नो कि लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, एंड ऑल्सो यू गेट दिस लाइब्रेरी कार्ड जिससे आप बुक को इशू भी करा सकते हो, घर लेकर जा सकते हो. दैट वॉज द टाइम आई गॉट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. आई वॉज क्लूलेस, एंड द डे आई गॉट टू नो अबाउट ऑल दिस, आई वॉज लाइक यार वेयर वॉज आई लिविंग फॉर पास्ट दीज ईयर्स. तो आई रियली एन्जॉयड, बिकॉज मेरे को फैंटसीज बहुत पसंद है, अभी भी बहुत पसंद है. आई रियली लाइक ड्रैगन्स, आई रियली लाइक फेरी टेल. सो मुझे बहुत पसंद आता है ये सारी चीज़ें.
मैजिकल, इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो क्या हुआ कि इशू हो गई है बुक, आई टुक बैक होम एंड आई रियली एन्जॉयड रीडिंग बुक. सबसे बड़ी बढ़िया बात मुझे बुक की ये लगी थी कि फॉन्ट साइज वॉज एक्सट्रीमली बिग. सो स्कूल की बुक्स जो होती हैं ना, आर्मी एडिशन बुक्स जो आती हैं, दे आर रियली मोनोटोनस एंड बोरिंग, सो आई रियली नॉट एन्जॉयड रीडिंग देम. सो ठीक है, उसके बाद ना व्हेन आई गॉट दिस बुक, सो नॉट ओनली डिड आई फिनिश रीडिंग इट, आई वॉज in between narrating it to my this younger idiot as well in this ways. ठीक है, not only did I finish reading this novel, मेरे को थोड़े से words जो vocab build-up के लिए जो words होते हैं, कुछ नए words पता करने को मिले. ऑल्सो जो ये नरेटिंग स्किल्स होती है ना कि आपने बताया कैसे, क्योंकि टू बी एक्सप्रेसिव, राइट, देयर समवन इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, सो यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन द सेम मैनर. So that is how I would say that I build up some communication skills as well. I was in class 8th when I started reading. It took me quite long, but the journey has been amazing. Now talking about the beginner's guide. मैंने जो पहली बुक उठाई थी वो रॉयल डाल की चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री उठाई थी, एंड दिस वाज नॉट जस्ट माय फर्स्ट बुक. ठीक है, इसके बाद मैंने पूरी सीरीज़ ख़त्म करी थी बिकॉज रॉयल डाल बिकेम माय फेवरेट ऑथर, क्योंकि एक ही था यार ऑब्वियसली. सो ही इवेंचुअली बिकेम माई फेवरेट ऑथर. तो स्टार्ट मैंने कैसे किया था, सबसे पहले आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए ना. यू डोंट नो कि कौन सा इंसिडेंट कब आकर आपसे टकरा जाए. सो कभी मौका मिले कुछ भी करने का, सो जस्ट गिव इट अ ट्राई. रीडिंग इज़ इवेंचुअली अ गुड थिंग यार, आपके स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव ही करेगी, क्योंकि पढ़ा हुआ यार व्यर्थ तो नहीं जाता है. ओह माय गॉड. ओके यार, सो फॉर क्वाइट सम टाइम आई वाज सो इनटू मी. मैं अपने बारे में बताया जा रही हूँ, बट देन अगेन यार मेरी गलतियों से थोड़ा सा सीख लेना कि सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग. अब बात करते हैं यार कि बुक कौन सी उठानी चाहिए. पहले विलियम शेक्सपियर मैंने तो देखा भी नहीं था. ठीक है, आई एम टेलिंग यू, मैंने तो रस्किन बॉन्ड भी नहीं देखा था पहले, मैं बता रही हूँ. आई जस्ट वेंट और मैंने कहा यार फॉरेन ऑथर, अपनी मतलब वो स्वैगी रहना है एकदम, फॉरेन ऑथर उठाएंगे. सो ट्राई इट, बट ऐसे ऑथर्स उठाओ विच आर ईजी, जो किड्स के लिए बनाए जाते हैं. ठीक है, अब मैं अपनी उम्र में अगर मेडिकल वालों की MBBS डॉक्टर की किताब उठा के पढ़ने लग जाऊँ, मुझे कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा, राइट. मुझे अपने 11th-12th में, मैं तो पहले ही बता देते यार, मैं मैथ स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं आता है फोटोसिंथेसिस के अलावा. तो व्हाट आई हैव टू डू, फर्स्ट मुझे 11th-12th का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ना, फूल पत्ती पढ़नी पड़ेंगी. उसके बाद मुझे बाद में जाके उनके बारे में डिटेल पता लगेगी, तब जाके मैं डॉक्टर बनूंगी. सो धीरे धीरे चलता है. सो यार बुक उठानी कौन सी है, टॉकिंग अबाउट, एक तो मैंने पहले सजेशन दे लिया, रॉयल डाल की सारी कलेक्शन बहुत अच्छी हैं, बहुत मार्वलस कलेक्शन है, बहुत ही फिक्शन से भरा हुआ है, एडवेंचर से भरा हुआ है. BFG ले लो, विचेस ले लो, या चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री ले लो, कोई भी रॉयल डाल की बुक उठा लो, इट इज़ अमेजिंग, मास्टरपीस बाय इन इटसेल्फ. दूसरी ऑथर दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज़ सुधा मूर्ति. आई डोंट नो बट आई फील वेरी कनेक्टेड टू हर आफ्टर रीडिंग हर 2 नॉवेल्स. मैंने इनसे पहले उनकी कोई नॉवल नहीं पढ़ी थी, बट वी आर ऑलरेडी अवेयर शी इज़ अ वेल नोन ऑथर एंड हर हस्बैंड. प्यार से हर चीज़ को डिटेल में बताया हुआ है. एंड ऑल्सो ठीक है, उसमें एक मॉरल स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ के कलेक्शन है, पूरी नोवेल अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड यू गोइंग टू लव दैट ऑथर. पंचतंत्र हो गई, रस्किन बॉन्ड हो गई, बहुत सारी हैं. मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी, बुक्स फॉर किड, एक अमेजॉन बुक हॉल करके वीडियो बनाई थी, इन विच आई ऑलरेडी मैंशन फ्यू ऑफ द बुक्स. उसमें आपकी विज़र्ड ऑफ ऊज है और बहुत सारी, टिंकरबेल हो गया, टिंकरबेल नहीं थी वो, पीटर पैन थी. सो पीटर पैन एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी बुक्स फॉर किड्स होती है ना, वो बुक आई हाईली सजेस्ट टू द बिगिनर्स. क्योंकि क्या होता है ना, जब किड्स के लिए बनाई जाती हैं वो बुक्स, तो उसमें वर्ड्स को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज होते हैं, राइट. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ किड टू बी एज गुड एज अ स्कॉलर. ठीक है, तो वो चीज़ें एज अ बिगिनर के लिए बहुत सही होती हैं. यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. Also, there's this author, there's a short story book called Inked in Illusions. I'm forgetting the author's name, but I'll definitely let you know in the description. So you can definitely try. That is a book of short stories, and वो fiction ही है obviously, but बहुत amazing stories हैं. You can definitely give it a try. That's it for today's video. Actually मेरे exams चल रहे हैं, अभी internals चल रहे हैं, and I have my final exams in September, maybe around 2nd or 3rd week. Also I have my FCAT on 29th. चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो चंडीगढ़ मिलते हैं फिर. So that's it for today यार. In case I missed out something, तो just leave that in comment section, and you can reach me out on Instagram. I'll leave the link in description. एक बार description भी देख लिया करो यार. You guys text me on Instagram to send me links about my posters, about the book. एक बार ही description खोल के देख लिया करो. So that's it. じゃあな。この相手をしてもらったお礼というか、お土産買ってきたんですけど。ゾビ